নমস্কার, সংবাদ টিভিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি জয়শ্রী। 2021-এর বিধানসভা নির্বাচন কত রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়, অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে যদি দেখা যায় একদিকে টিকিট নিয়ে শুধুমাত্র হানাহানি চলছে, টিকিট, অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে টিকিট না পেয়ে পরমুহূর্তে দল পরিবর্তন করছে। আবার এমনটাও আমরা রঙ্গমঞ্চে দেখেছি, পীর সম্প্রদায়ের মানুষ তারাও ধর্মকে একপাশে রেখে রাজনীতির মঞ্চে রয়েছেন, কোনো অংশে পিছিয়ে নেই নবাব পরিবারও। আজকে কেন এমনটা বলছি সেটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরব। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা দ্বিতীয় নবাবের বংশধর অর্থাৎ সৈয়দ ওয়াসেফ আলী মির্জার বংশধরও কিন্তু পিছিয়ে নেই, তিনিও প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন। কোন দলে সেটা আপনাদের বলবো। প্রথমত আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন নবাব সৈয়দ ইমরান আলী মির্জা, তাকে প্রথমে স্বাগত জানাবো। স্বাগত আপনাকে। আমি প্রার্থী এখনও ঘোষণা করেছি, কিন্তু কোন দল এখনও বলিনি। একটা হয় হেভিওয়েট, একটা হেভিওয়েট না হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যায়, আর অন্যদিকে পড়ে থাকে যেখানটা মানে নির্দল বলতে গেলে আমরা যেটা বুঝি। এবার আমি আসি আমাদের দর্শকের কাছে। নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইমরান আলীজি। একটা প্রশ্ন আমার মাথায় আসছে এবং স্বভাবতই আমার পর্দার উপরে যারা দর্শকরা রয়েছেন একটা প্রশ্ন রয়েছে, হেভিওয়েটেও পেলেন না, মাঝামাঝি দিকেও গেলেন না, হঠাৎ করে নির্দল টিকিট পেলেন, মানে ওখানে টিকিট পাওয়া যায়নি বলে নির্দল হয়ে কন্টেস্ট করা? না না, এটা এরকম কোনো ব্যাপার নেই कि আমি টিকিট পার্টি থেকে মানে আমাকে দিচ্ছিল না। একটু বাংলা বলতে আমাকে অসুবিधा है। श्योर, यू कैन स्पीक इन हिंदी आल्सो। মানে पार्टी से हमको टिकट मिल रहा था। आपके ये अब्बास सिद्दीकी साहब जो हैं फुरफुरी शरीफ, उनके तरफ से हमारे पास ऑफर भी आया था। तो वो हमको মানে উনি আমাকে বললেন কি আমাদের যে সিটটা আছে মুর্শিদাবাদ কনস্টিটিউয়েন্সি যেখানকার আমি ভোটার, কি আপনি ওই সিট থেকে দাঁড়ান। তাই আমি বললাম কি না, আমি ওখান থেকে দাঁড়াবো না, মুর্শিদাবাদ সিট থেকে আমি দাঁড়াবো না। আমি দাঁড়ালে 62 ভগবান গোলাই সিটে দাঁড়াবো। কেন 62 ভগবান গোলা ওই মাটিটা আমার মানে আমার ফাদারের মাটি একরকমের, কেন উনি 87 to 96 অব্দি এমএলএ থেকেছেন। তো তাই জন্য ওই মাটিটাকে আমি ছাড়তে চাই না। মানে আপনার ভিটে মাটির টানে সেখানে থাকা, যেহেতু ওই জায়গাকার আপনি হচ্ছেন ভূমিপুত্র। এবার একটা কথা বলি, নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, ময়দানে জঙ্গে খেলা হচ্ছে, খেলার ময়দানে তো হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়ই, এবং আপনার এগেনস্টে আমি যদি খুব ভুল না করি টিএমসি থেকে রয়েছেন ইদ্রিস আলী, বিজেপি থেকে রয়েছেন মাহমুদ আলম। মনে হচ্ছে খেলতে পারবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই খেলতে পারবো। কেন খেলতে পারবো? সেই স্পিরিটটা আছে, মানে মানুষ কি আপনাকে এই রাজনীতির ময়দানে আপনাকে সাপোর্ট করছে? হ্যাঁ, অবশ্যই করছে। না করলে আমি কেন যেতাম? ওখানকার লোকাল আমাকে চাচ্ছে কি আপনি আসেন। মানে আজ পর্যন্ত ওখানে যা মানে আমার ফাদারের পর 96-এর পর যারা এমএলএ হয়েছেন, আমি কারোর নাম লিখছি না, মানে 25 বছরের মধ্যে কোনো রকমের ভগবানগোলা মানে শিল্প হোক কি উন্নতি হোক কি রাস্তা হোক কি জলে কাজ হোক কিছু হয়নি। আচ্ছা, কিছু হয়নি। তো আজকে মানুষ ওখানকার লোককে ভোট দিয়ে দিয়ে বিরক্ত হয়ে গেছে, সব বলছে করব, কিন্তু জিতা পর জানছে তো অবস্থা কি মানে সব নিজে নিজে। অর্থাৎ আপনার কথা অনুযায়ী আমি যদি ধরেই নিই, যদি ক্ষমতায় আসতে হয় বা যখনই রাজনীতির মঞ্চে আমরা যখনই দেখি না কেন রাজনীতির নেতারা প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসেন, আপনিও কিন্তু নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আমি যদি একটা সময়ের মুহূর্তে বা এক মুহূর্তের জন্য ধরে নিই নির্দল প্রার্থী হিসেবে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, এই লড়াইয়ের ময়দানে যদি আপনার জয় হয়, যে প্রতিশ্রুতিগুলো আপনি জনসাধারণের কাছে রাখছেন এবং আপনার এলাকার জন্য রাখছেন, সেটা কি আপনি রাখবেন? অবশ্যই রাখবো। কি কি প্রতিশ্রুতি আপনি করেছেন এবং কি কি উন্নয়ন করার ইচ্ছা আছে আপনার? দেখেন, আমার তো মেন যে দুটো কাজ আছে কি আগার আমি ওখানে আসতে পারি, তো প্রথম যেমনি জলের মানে ওখানকার লোকের খুব অসুবিধা, আর মেন যে রাস্তাগুলো মানে যে আমার আব্বার সময় যে রাস্তাটা হয়েছে আজ পর্যন্ত রাস্তাটা তৈরি হয়নি। ওই রাস্তার উপরে লোক হাঁটাফাটা করছে। আর জলের অবস্থাটা এটা প্রথম আমার কাজ থাকবে কি এই কাজটা আমি প্রথম করব। আর এটাও আমি মানে ভগবানগোলার ওখানকার যারা থাকছেন মানে ভোটাররা বাসিন্দারা কি আমি গভর্নমেন্ট থেকে भगवानगोला জন্যে যা পাবো মানে जो हमको मिलेगा खर्चा करने के लिए वो सारा पैसा भगवानगोला के आवाम को दे के आएंगे। तार ওখানকার লোককে দিয়ে আসবো, ওখান থেকে 1 টাকা আমি নিজে বাড়িতে নিয়ে আসবো না। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলি, এখানে টাকা পয়সার ব্যাপার নিয়ে যেহেতু আপনি তুললেন,
সুবিধা পাওয়ার জন্য কি রাজনীতি করা নাকি আত্মত্যাগের আরেক নাম হচ্ছে রাজনীতি? আপনি কিন্তু বলেছেন যে हम कुर्बान कर देंगे, आवाम के लिए कुर्बान कर देंगे। हालांकि सभी अपनी पता है कि अपने राजनीति में आते हैं कि सुविधा लेने के लिए। अभी राजनीतिक ऐसा हो रहे हैं मगर आपको कोई सुविधा नहीं चाहिए? মানে আমাকে যা দিয়েছে আমার খুশি আছি, ডাল রুটি খাচ্ছি, মানে আমাদের যা আছে আমাদের ওসব দরকার নেই। হারামে টাকা আমরা মানে পাবলিকের টাকা মেরে নিজে ঘর ভরবো, সেটা আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে নাই। নির্দল থেকে যদি আপনি যেতেন তাহলে কাকে সমর্থন করবেন? আমি সেকুলার আছি এখন, মানে এখন তো এখন আমি কী করে বলবো কি আমি কাকে সাপোর্ট করবো, আমি তো নিজেই নির্দল। না, আমার কথা অনুযায়ী হচ্ছে এখন ত্রিপাক্ষিক লড়াই চলছে এবং ত্রিপাক্ষিক লড়াইয়ের মশলাতে একটা আপনার খুব কমন ওয়ার্ড, যেটা আপনি সেকুলার কথাটা বললেন, এটা আমরা দেখেছি। আর উল্টো দিক থেকেই হচ্ছে ধর্ম নিয়ে একটা রাজনীতি চলছে, অর্থাৎ জয় শ্রীরাম স্লোগান একটা চলছে। কোথাও একটা বিভেদের রাজনীতি, কোথাও আবার বলছে একত্রিত করা, কোথাও কোথাও আমরা এমনও দেখছি সহানুভূতির উন্মেষটা চলছে। তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি যদি যেতেন কাকে সমর্থন করবেন? আপনি তো কন্টেস্ট করতে গেলে কাউকে না কাউকে তো আপনাকে নিয়ে সাথে চলতে হবে। আমি দেখেন সেকুলার যা থাকবে তাকে সাপোর্ট করব, মানে যিনি সেকুলার হয়ে বাংলার মসনদে আসবেন তাকে আপনি। এবার একটা প্রশ্ন করি, যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামটা হচ্ছে 2021 সংখ্যালঘু কাদের, 2021 में जो इलेक्शन है हाई वोल्टेज इलेक्शन है, त्रिपाक्षिक लड़ाई चल रहे हैं। जिसका भी सरकार आएगा बंगला में, जिसका भी सरकार आएगा, चाहे मोदी का सरकार हो या ममता के सरकार या जोट में वोट, 30% वोटर्स इज एक्स फैक्टर टू विन 2021 इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन। तो ये संख्यालघु किसके पास जाएगा? मतलब आस्थावान किसके ऊपर होगा, ममता के ऊपर, मोदी के ऊपर या जोट के ऊपर? देखिए ये संख्यालघु वोट तो मोदी की तरफ तो नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। ये वोट बटेगा आपके समझिए कि माने कुछ निर्दल की तरफ जाएगा, कुछ टीएमसी कांग्रेस। आपको नहीं लगता है कि जो ये माइनॉरिटी हैं, ये खास करके बतौर जो भी सरकार आती है, इनको वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, आज कोई कुछ सुविधा मिला है? सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कुछ सुविधा मिला है? बहुत अच्छा आप क्वेश्चन किए हैं कि মানে আজকাল का যা রাজনীতি হচ্ছে, আমি কারো পার্টি নাম লিখছি না, কিন্তু সবাই মুসলমানকে মানে আমাদেরকে মানে সংখ্যালঘু ভোটকে শুধু ইউজ করছে, তাদের জন্য কিছু করছে না। এটা যেই পার্টি হোক, কি করেছে সে সংখ্যালঘুর জন্য কি করেছে আপনি দেখান তো আমাকে, একটা জায়গা দেখান তো। সেই প্রশ্নটা তো আমারও, সেই প্রশ্ন সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে বলছে, সেই জায়গা থেকে আপনার মনে হচ্ছে না যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই জায়গাটার কথায় কোথাও গিয়ে পীরজাদারা মনে করেছেন বলেই তারা আলাদা করে একটা ফ্রন্ট গঠন? না না, পীরজাদাকে তো রাজনীতিতে আসা ভুল হয়েছে ওনার। কেন ভুল হয়েছে? ধর্মের সাথে রাজনীতিকে না 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 না, এটাও তো ওনার খুব বড় ভুল কাজ করেছেন উনি। উনি একটা মৌলবি মানুষ, কোনো মৌলবি মানুষ, মৌলবি যে থাকে না যে সত্যি কথা বলে, তাকে মিথ্যা কথা বলা হারাম। রাজনীতিতে আসলে উনি তো মিথ্যা কথা বলতে হবে, তো উনি ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। মানে আপনি বলছেন যারা রাজনীতি করে তারা সকলকে মিথ্যা কথা, মানে মিথ্যা, ওই আমার প্রথম কথাটা কিন্তু হলো যে প্রতিশ্রুতি দেব অথচ রাজনীতি করতে গেলে মিথ্যা কথা তো বলতেই হবে। দেখেন আমি যা বলছি সত্যি ঘটনা বলছি, কি আমি আগে 10 টাকাটা সত্যি বলবো তো একটা কথা মিথ্যা বলতেই হবে আমাকে। কিন্তু একটা মৌলবি মানুষ যে সবসময় আল্লাহকে ডাকতে মসজিদে, সে লোকের কাছে মিথ্যা বলবে, তো ও আল্লাহকে কি জবাব দিবে, যে রসুলকে কি জবাব দিবে? আজকে যে আব্বাস সিদ্দিকী যে রাজনীতিতে নেমেছেন, এটা খুব বড় ভুল, মানে মুসলমানদের জন্য একটা খুব খারাপ কাজ করেছেন উনি। এটা যেমন বলছেন, আর এক পীরজাদার কথা বলি, তিনিও কিন্তু ইউএসএফ গঠন করেছেন। কোড আনকোড আপনি বুঝতে পারছেন আমি কার কথা বলছি? তাহলে সেটা বলছেন তার ডিসিশনটা ভুল? না না, এরা দেখেন এভাবে যারা পীর আর মৌলবি যারা পলিটিক্স আসছে, এদেরকে আসা উচিত না। আমার যত ধারণা, এখন ওনার পার্সোনালি ম্যাটার সেটা, কিন্তু আমি যত ইসলাম বুঝি, যত আমি ইসলামের মধ্যে স্টাডি করেছি, যত আমি কিতাব বই পড়েছি, তার মধ্যে মৌলবি এরা এসব থেকে দূর থাকে তো ভালো। রাজনীতির অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে আপনি কথা বলেন, আরও কথা হবে একটা বিজ্ঞাপন বিরতির ওপার থেকে। সুস্থ থেকে স্বাস্থ্য, খেলা থেকে বিনোদন, এক ছাদের নিচে অনেক কিছু। সময়ের সঙ্গে থাকতে আজই ডাউনলোড করুন সংবাদ টিভি। ফিরে এলাম বিরতির পর, আপনারা দেখছেন সংবাদ টিভি। আমরা যে বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করছি 2021 সংখ্যালঘু কাদের, এর পাশাপাশি निर्दल प्रार्थी हिसेबे রয়েছেন ইমরান জি। एक सवाल मुझे बताइए,
जो भी प्रार्थी कॉन्टेस्ट करते हैं, चाहे इलेक्शन के बतौर असेंबली इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, उनका कुछ तो ना कुछ मकसद रहता है। आपका क्या मकसद है? आपके जो इलाके के आवाम हैं उसके लिए क्या मकसद है? मतलब क्या करना चाहते हैं ऐसा कुछ? देखिए, हमारा असल मकसद है, हमको राजनीति से कोई इंटरेस्ट, कोई शौक़ नहीं था। लेकिन हमारे फादर 2016 में जाने के बाद वो 10 साल वहाँ भगवान गोला पब्लिक के बीच में वो रहे हैं, और वहाँ के आवाम पब्लिक वोटर हमारे फादर को आज भी मानते हैं और आज भी उनका नाम है। तो यही सोच के कि भगवान गोला में जिस तरह से हमारे फादर का नाम है आज भी, और आज भी जिस तरह लोग उनको वहाँ नाम लेने से पहचान लेते कि हाँ नवाब जानी मिर्ज़ा एमएलए, आज भी लोग उनको इज्जत देते हैं, श्रद्धा करते हैं। तो यही सोच के मैं भगवान गोला कॉन्स्टिट्यूंसी पसंद किया कि अगर मैं पॉलिटिक्स का जो कैरियर है शुरू करूंगा तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से करूंगा, अदर्स कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जाना नहीं है हमको। जैसा कि आपने बताया कि आपके मेरे पिता जो हैं, अगर मैं कोडान को ऐसा बताऊं कि बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ ना हुआ फिर थोड़ा थोड़ा, तो राजनीति में आए हैं तो निर्दल क्यों? कोई दूसरा अच्छा पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, हेवी वेट है तो नहीं तो कम वेट वाला। नहीं, देखिए, पार्टी ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं कि हमको बीजेपी की तरफ से भी ऑफर आया कैंडिडेट होने का, आपके अब्बास सिद्दीकी साहब SFI की तरफ से भी ऑफर आया हमको, लेकिन उन लोग जो ऑफर कर रहे हैं उस पार्टी से हमको खड़ा होना ही नहीं है। आपको मतलब जो भी राजनीति पे आते हैं उनका कुछ मकसद रहता है, कोई सेकुलरिज्म में अपने विश्वास रखते हैं, कोई धर्म में विश्वास रखते हैं। जैसा कि हैं आप शुरू में बताए हैं कि यू आर बिलीव इन सेकुलरिज्म, तो इसके अलावा और कोई भी अपनी मतलब कोई सोच आपके जहन में है कि मुझे राजनीति में आके अपना करियर अगर बनाना है, इसको बतौर जो है, जैसे कि आपने बताया कि आवाम के लिए आपको ये करना है, आवाम को छोड़ के अपने आपका कुछ निजी मकसद है? नहीं, मेरा कोई निजी मकसद नहीं है। हमारा करियर जो जैसा है वो बहुत अच्छा है। मैं राजनीति में रहूं ना रहूं, मेरा करियर बहुत अच्छा है। ये नहीं कि राजनीति करने से मेरा घर चलेगा या मेरा हांडिया पक्केगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई सुविधावादी, मैंने सुविधा लेने के लिए नहीं, राजनीति से कोई सुविधा नहीं चाहिए। हमारे फादर माने आज भी आप किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर से पूछ लो कि 10 साल MLA रहे, लेकिन कोई पॉलिटिकल लीडर उनके ऊपर उंगली उठा नहीं सकता कि सैयद नवाब जानी मिर्ज़ा एक भी हराम का रुपया लिया होगा, बल्कि घर से दे दिया है तो लिया नहीं है। तो हम उसी का लड़का हैं। माने हम नवाब जो है ना, देना जानते हैं, लेना नहीं जानते हैं। अच्छा, आप लोग देना जानते हैं, लेना नहीं जानते, तो राजनीति में तो अदला बदली चलेगा ही चलेगा। फिर अब हाउ टू बैलेंस, यू कैसे बैलेंस करोगे आप? फिर अदला बदली क्या चलेगा? हमको जो मिलेगा हम दे देंगे, खाली आवाम के लिए दे देंगे? आवाम को दे देंगे। मेरा तो है ही, आवाम के लिए देंगे। तो कुर्सी का मकसद क्या है? कुर्सी का मकसद कि उस कुर्सी से हम जितना भी आवाम को वहाँ फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, वही मेरा मकसद है। अगर अपना जैसे कि आप निर्दल में अपने खड़े हुए हैं, तो आपको किसी ना किसी के अपने साथ में चलना है, किसी के बतौर उसके अपने रास्ते में आपको चलना है, तो किसके बतौर आप चलोगे? अब देखिए, ये तो है कि अब जिसकी, ये तो हम नहीं बोल सकते हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या अब्बास सिद्दीकी साहब को सपोर्ट करेंगे। जो आपके बीजेपी अब्बास सिद्दीकी जो इन लोग मिला हुआ है, इस पार्टी की तरफ तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। हाँ, उसके अलावा कोई सेकुलर पार्टी आएगी गवर्नमेंट में तो उसके तरफ हम जरूर जाएंगे। एक स्टेट सवाल आपसे, 2021 में जो हाई वोल्टेज इलेक्शन है, त्रिपाक्षिक लड़ाई चल रही है, अगली बार मोदी सरकार ममता के सरकार या जोट में वोट, क्या लगता है आपको? 294 सीट्स में सारे कैंडिडेट जो है लड़ाई कर रहे हैं, ISF में खाली 34 कैंडिडेट लड़ाई कर रहे हैं। तो अगर मैं अपने दोनों तरफ में देख लूँ, द्विपाक्षिक का देख लेती हूँ, TMC एक तरफ, दूसरे तरफ में है BJP, तो क्या लगता है ममता के सरकार या मोदी के सरकार? देखिए, ये बोलना मुश्किल है। हम अभी ये कैसे बोल रहे हैं, हम तो कोई ये नहीं है कि हम पूरे बंगाल के सीट का 294 सीट का हम एग्जिट पोल कर लिया हम बता दें। बंगला में मसला तो किसी को न किसी का सरकार को तो आना है। देखिए, आना तो है, कोई आप भी एक वोटर हो, राइट? माने ये श्योर नहीं है कि हम भगवान गोला जा रहा है तो हम जीतेंगे, लेकिन ये इतना हमको भरोसा है कि वहाँ के भगवान गोला के जो वोटर हैं, चाहे वो TMC हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो CPM का हो, चाहे वो BJP का हो, एज ए सेकुलर और एज ए निर्दल कैंडिडेट और एज ए हमारे फादर सैयद नवाब जानी मिर्ज़ा का लड़का है, इस बेसिस में हमको चारों तरफ से हमको वोट मिलेगा।
तो क्या लगता है कि मैदान जंग में जो आप लड़ाई करने जा रहे हो, चारों तरफ में अभी एक ही हवा चल रहा है, खेला होबे इदरीस शारी के साथ में और ये महफूज आलम के साथ में आप मैदान जंग में खेल कर पाएंगे? इतना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर? एकदम कॉन्फिडेंस है। देखिए इधर भैया टेंशन हो रहा है, मोदी के अगेंस्ट में कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, ममता जी के अगेंस्ट में कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, तो हम क्या इदरीस अली का मुकाबला नहीं कर सकते हैं? मतलब इतना अपना आपके ऊपर भरोसा है, निजी ऊपर आपके कॉन्फिडेंट है, राइट? देखिए मैदान जंग में जाने से ये थोड़ी अगर मेरे सामने कोई हेवी कैंडिडेट है तो हम डर गए तो उसको जंग नहीं बोला जाता। जंग में जब जाओ तो सीना तान के जाओ। हार जीत तो है ही, या वो जीतेंगे या हम जीतेंगे या जो अगला वो जीतेगा। जीतना एक को है, लड़ना सबको है जी। तो एक बात आपको बताएं, खेला में हार या जीत रहता है। अभी थोड़ा नेगेटिव बात करते हैं। एक फिल्म का डायलॉग है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और अभी आपके इंटरव्यू हमारे अपने बतौर जो भी अपने दर्शक दिख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये जीत, आपने कहा है कि इतनी जीत होगा, अगर आपका जीत होता है आप सेकुलरिज्म में जाते हो, अगर मैं उल्टी तरफ से बोलती हूँ नेगेटिव अगर होगा, तो क्या आप राजनीति छोड़ दोगे या जैसा अपना आपका मकसद था वैसा ही रहेगा? नहीं, देखिए राजनीति में जब इन हो गया हूँ तो ये छोड़ा नहीं जाता है ना। ये तो नहीं कि जब इन हो जाता तो छोड़ा नहीं जाता है। हमारा एक ही मकसद है कि जब तक हम भगवान गोला के आदमी के लिए हम कुछ कर नहीं देंगे, चाहे भगवान गोला से मैं 10 बार हारे और फिर 10 बार भी खड़े होंगे, चाहे वो निर्दौल भी हो, चाहे किसी पार्टी से हो, सेकुलर पार्टी से हो, खड़े होंगे। लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि भगवान गोला में हमारे फादर के नाम को जगा के रखना। ओके, आपके पापा के नाम को जो है आप रोशन करना चाहते हैं। तो संग संग जो है एक आखिरी सवाल आपको, पापा का नाम रोशन कर रहे हैं ये ठीक है, आपका अपना पॉलिटिकल कैरियर भी आप शुरू करना चाहते हैं ये भी इतनी ठीक है, मगर जनता को तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगा आपके ऊपर। आप जो प्रचार करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि जनता आपके साथ है? हाँ एकदम 100% है। वो सपोर्ट कर रही है एकदम 100%। इतना वाइब्रेशन आ रहा है आपको, मतलब इट शुड बी अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। आज वहाँ की जनता, वहाँ के वोटर, मान इस साल हमारा कोई इरादा नहीं था क्योंकि रमज़ान का महीना पड़ रहा है और हमारे वहाँ जो इलेक्शन हो रहा है उस टाइम रमज़ान रहेगा, रोज़ा का महीना रहेगा। तो हम सोचा था कि नहीं खड़े होंगे क्योंकि रोज़ा में कैंपेनिंग करना, ये करना बड़ा टफ होता है, फास्टिंग में बहुत प्रॉब्लम फास्टिंग में हो जाता है। तो फिर पब्लिक वहाँ का बोला कि दादा आपको आना पड़ेगा, अच्छा आपको खड़ा होना पड़ेगा इस बार। हम लोग माने वहाँ की पब्लिक हमको रिक्वेस्ट किया भगवान गोला की, अब वो चाहे वो किस पार्ट टीएमसी का है या कोई भी आम पब्लिक हमको रिक्वेस्ट किया कि आपको खड़ा होना होगा, आप निर्दल हो दादा, अब प्लीज़ आके आप माने इस जगह को संभालो। जैसे कि आपने कहा कि आप अगर उन्नयन करेंगे, अगर आप जीतते हैं तो उन्नयन करेंगे इलाके के अपने जो पीने वाला पानी और दूसरा है रास्ता, इसके अलावा शिक्षा के लिए कुछ सोचे हैं आपने? शिक्षा की सोचा, क्या सोचे थोड़ा बताइए। शिक्षा के लिए सोचे कि हमारे फादर का एक सपना था वहाँ कॉलेज कराने का। असल मेरा मकसद वही है कि अगर मैं जीता तो इसलिए मैं भगवान गोला आज क्यों चूज़ किया हूँ कि भगवान गोला से चाहे उनको किसी पार्टी से सीट मिले चाहे किसी से मिले, अगर हारा जीता जो भी हो, लेकिन मेरा मकसद है कि वहाँ कॉलेज करवाना जो हमारे फादर करवा नहीं पाए, दुनिया से चले गए। ये उनके ख्वाब को हम पूरा करने गए वहाँ पे। अच्छा, जैसा कि आपने कहा ना, आप बार बार इतनी इनपुट कर रहे हैं कि आपके अपने पिताजी के जो ख्वाब है वो आप पूरा करना चाहते हैं। अभी इंटरव्यू के एक आखिरी सवाल है आपसे, वो है कि जीतना या हारना ये 2 मई में पता चल जाएगा, किसका फेवर में क्या होगा ये सभी अभी हम बोल नहीं पाएंगे। 2 मई में पता चलेगा किसका सरकार बंगला में आएगी। अगर ऐसा कुछ उल्टा होता है, मतलब मान के चलिए अपने चाहे मोदी जी हों, जैसे कि अपने यहाँ आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो, अगर मोदी जी आ जाते हैं फिर आपका अपना बतौर क्या रहेगा? हम मोदी में नहीं जाएंगे, सेकुलर में रहेंगे। सेकुलर में रहेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा सेकुलर अगर जो जीतेगा उनके साथ में, मतलब सेकुलरिज्म के साथ में आप जाएंगे। बीजेपी में अगर आज मैं हाँ कर दूं ना, आज हाँ कर दूं तो हमको घर से भी पैसा भी लगाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, और मेरे घर में पैसा पहुंच जाएगा, सब पहुंच जाएगा। ऑफर आ चुका है आपके बीजेपी से कि आप खड़ा हो, तो हम सीधा बोल चुके हैं भैया हमको बीजेपी करना नहीं है,
और नहीं आप हमको करोड़ों रुपया भी दे दोगे तो हमको खड़ा होना नहीं है, भले हम खड़ा हो ना हो, लेकिन बीजेपी से ना हमको कैंडिडेट होना है, ना बीजेपी का होके हमको लड़ना है। बीजेपी से चाहत क्यों नहीं है? नहीं चाहता। बहुत सारे लोग तो अपने मतलब टीएमसी में जो थे वो तो अपना राजनीति अपनी दल परिवर्तन करके अपने टिकट ना मिलने से वो लोग चले गए हैं बीजेपी में। देखिए वो जिन लोग दल बदल कर रहे हैं इन लोग अपना सिर्फ राजनीति फ़ायदा लूटने के लिए कर रहे हैं। हम लोग राजनीति से कोई फ़ायदा लूटना नहीं है, सीधी बात। अगर फ़ायदा लूटना होता तो हम भी बीजेपी कर लेते हैं, तो अब्बासी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन हमको राजनीति से फ़ायदा लूटना नहीं है। एक ही सौ मैंने हर बात एक ही कर रहा हूँ ना कि अल्लाह ने हम लोग को जो दिया है बहुत है हम लोग के लिए। हम लोग राजनीति करें ना करें काफ़ी है हम लोग के लिए। राजनीति हम लोग का कोई व्यवसाय नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। राजनीति हम लोग सिर्फ हम लोग के जो फैमिली करते हैं ना, ये पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए करते हैं। अभी जो है 8 चरण में 2 चरण हो गया है इलेक्शन, अभी भी अपनी 6 चरण बाकी हैं, तो आवाम को क्या बोलना चाहेंगे आप? आपके इलाके में अभी भी जो है वो चरण बाकी हैं, वो चुनाव बाकी हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे उनको? आवाम से बस मेरा एक ही विनती रहेगा कि हम तो आ रहे हैं, अब अगर आवाम हमको पसंद करते हैं और भगवान गोला में अगर जो लोग चाहते हैं कि वहाँ डेवलप हो, भगवान गोला बने जैसा हमारे फादर के टाइम में बना था, तो हमको आगे बढ़ाएं, तो लोग खुद देखेंगे कि भगवान गोला आज कहाँ है और 5 साल के अंदर भगवान गोला कहाँ पहुँचेगा, वो खुद देख लेंगे उन लोग। ओके, जैसे कि आप बार बार ही एक ही चीज़ बोल रहे हो, अगर भले ही आप निर्दल में कंटेस्ट कर रहे हो, जो बंगला में अपने जिसका सरकार बनेगा मतलब जो सेक्युलर होगा उसके संग आप चलोगे। अब मेरा एक सवाल है जिसमें ऑप्शंस हैं, उसी ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है। बंगाल के मसनद में मुख्यमंत्री के हिसाब से कौन सही होगा? ममता बनर्जी जी, दिलीप घोष और अधीर रंजन चौधरी जी, तीनों में से कौन? देखिए इसमें मेरा एक ही सवाल है कि पब्लिक जिसके तरफ जाएगी, माने पब्लिक जिसको सपोर्ट करेगा मुख्यमंत्री के हिसाब से, वही मेरा सपोर्ट होगा। मान के चलिए अपने पब्लिक सपोर्ट करते हैं दिलीप घोष जी को, यू विल गो फॉर दिलीप घोष। आपने पहले कहा यू आर बिलीव इन सेकुलरिज्म, राइट? अगर दिलीप घोष के तरफ होगा तो फिर हमारा तो सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन अदर्स ये दोनों में अगर से होता है कि ममता जी या अधीर रंजन चौधरी, तो इस तरफ होगा। लेकिन दिलीप घोष अगर बाई द वे दिलीप घोष आ जाता है तो फिर हम उधर से तो यू विल रिटर्न बैक हो जाएंगे। আপনারা শুনলেন যে 5 বছর আগে কি পরিস্থিতি ছিল আর এখন ভগবান গোলার কি পরিস্থিতি হবে সেটা তো দোসরা মেতেই আমরা জানতে পারবো যে বাংলার মসনদে বাংলার ডার্বিতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে কে থাকছে এগিয়ে, মমতা সরকার না মোদি সরকার না জোটের ভোট। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং আউট হিয়ার। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। অবশ্যই আপডেট দেখার জন্য দেখতে থাকুন সংবাদ টিভি, আমাদের বিকল্প আমরা।